from the makers of demonetization. 500 और 1000 के नोट comes a mega policy that pledges to change the economic landscape of India forever. GST. For those of you who do not understand the GST, well, neither do we. एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं The GST is supposed to be a revolutionary transformation of India's tax system. The GST is supposed to do many good things. Eliminate tax evasion, reduce the cost of tax collection, bring foreign investment, unify the nation, eliminate terrorism from Pakistan, and save all cows of the motherland. Okay, maybe not the last two. Prime Minister Modi thinks it to be so revolutionary that in a recent trip to the United States, he suggested the Americans should learn a thing or two from GST. So for those of you who are still wondering, what on earth is GST? Goods and services tax, once implemented, will replace almost all the indirect taxes that central and state government levy on goods and service. Till now, under India's federal structure, state governments had the right to determine the tax rate they levy on different commodities. For example, cars cost more in Haryana than in Delhi. This gave different states the flexibility to tax goods based on their needs. So, a poor state may decide to levy higher taxes than its states on luxury goods to help pay for education or, say, healthcare. Kerala, for example, charges luxury taxes on cars priced higher than 20 lakhs and on apartments bigger than 2,000 square feet. Great, right? Nope. There would be a GST council that would decide on the tax rates. Now, the GST council would consist of all the state government representatives plus the central government representatives. So, suppose I happen to be in a particular state government and I want the tax rate to be changed. In that case, I would have to approach the GST council where I am only one of the members. As a result, my autonomy in fixing the tax rate that I believe is essential for raising greater revenues in the states is something that completely goes. States will effectively become the tax collectors of the centre. Much like commission agents, they will receive a cut. The government argues that tax collection will become easier and corruption in the process will decline. But if the same old institutions are implementing new policies, change is far from certain. Old wine in a new bottle, anyone? One of the arguments is that GST will unify the market in India, making it one nation, one market. Now, I just want to bring to your notice the fact that the most powerful capitalist country in the world is the United States, which is the leader of world capitalism. And the US not only does not have a uniform GST across the states, different states have different exemption limits, different states charge different taxes. It has a plethora of taxes. Now, who is going to tell me that the US does not have a uniform national market? Fun fact. Did you know that back in 2011, it was the Congress government that pushed hard for the GST in Parliament, but the bill was repeatedly stalled by guess who? The BJP. Now, let's come to the GSTN, the back end of the GST. The GSTN is a special purpose company established to provide IT support to implement GST. It will also serve as a repository for all GST related data. But the majority stake in GSTN is, you guessed it right, privately held. Central and states each hold 24.5% in GSTN. LIC Housing Finance holds 11%, while HDFC Bank, ICICI Bank and NSE Strategic Investment Company hold 10% each. And if things couldn't get murkier, Naveen Kumar, the head of GST Network, has said that software testing for the implementation of GST is not fully done and cannot be accomplished by the July 1st deadline. In fact, the GST server went down on the night of June 30th, one day before its launch, because there were too many users logged in. So if the software is not ready, why is the government bulldozing the entire country into the GST? Can India, reeling with farmer suicides and unemployment, afford another poorly thought out economic policy at this time? Let's find out.
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज हम अपनी सीरीज में डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इन लाइट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी के आने के बाद किस तरीके से कंसेप्चुअल शिफ्ट आ रहा है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी बातें जानना ज़रूरी है, या क्या क्या चेंजेस आपको अपने बिजनेस में लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहली टिप्स है रिव्यू ऑफ योर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे आप लोग एक्साइज ड्यूटी पे करते हो विच इज लेवेबल ऑन मैन्युफैक्चर एंड पेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि अब जीएसटी में किस तरीके से चेंज हो जाएगी ये कंसेप्ट। इन इटसेल्फ मैन्युफैक्चरिंग एज एन टैक्सेबल इवेंट विल गो आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी में मैन्युफैक्चर करने पे कोई टैक्स नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको सप्लाई नहीं करते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि जो जीएसटी में कंसंट्रेशन ऑफ टैक्सेस है, जो टैक्सेस में चेंज है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी में चेंज है, वो सबका सब आएगा आपके स्टेट के बेसिस पे, यानी कि आप किस स्टेट में बैठ के ऑपरेट कर रहे हो और किस स्टेट में आप डिलीवर कर रहे हो। इसी से डिसाइड होगा कि आप पे कौन सा टैक्स लगेगा और आपको उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है यूपी में, और आप उसमें गुड्स मैन्युफैक्चर करके उन गुड्स को स्टोर करते हो वेयर हाउस के अंदर। अब आपके पास दो ऑप्शन थे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में, या तो आप उसको सेम स्टेट में वेयर हाउस में स्टोर कर सकते थे, या फिर आप दूसरे स्टेट में एक बड़ा वेयर हाउस बना के वहां पे अपने गुड्स स्टोर कर सकते हो। अब जीएसटी में आप अगर स्टेट क्रॉस करोगे तभी आप पे टैक्सेबिलिटी आएगी। एक स्टेट के अंदर आप कितनी भी अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, आप सेम स्टेट के अंदर कितने भी टाइप ऑफ बिजनेसेस कर सकते हो, और उनके साथ जो आप ट्रांजैक्शंस करोगे उस पर आपकी कोई जीएसटी में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं उसको एक्साइज से कंपेयर करूं तो एक बार आपने गुड्स प्रोड्यूस कर ली, अब आप उसको रिमूव करने के टाइम पे एक्साइज पे कर रहे हो, चाहे आप उनको फिर अपने लोकल गोडाउन के अंदर स्टोर करो, यानी कि सेम स्टेट के गोडाउन के अंदर स्टोर करो, या फिर आप उसको दूसरे स्टेट में ले जाके वहां पे स्टोर करो, आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी ही करनी है। लेकिन जीएसटी में वो सीन नहीं रहेगा। तो लेट सपोज आपका करंट स्ट्रक्चर ये था कि आपने वेयर हाउसेस कहीं और बनाए हुए थे क्योंकि लैंड सस्ती थी, तो इस वजह से आपके लिए था कि वहां पे इजी है वेयर हाउस बनाना। तो जीएसटी में आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेम स्टेट के अंदर बड़े वेयर हाउस बना के उनको वहीं पे स्टोर करो, और जितनी आपकी सप्लाई जानी है फिर डिफरेंट स्टेट में, जितना पॉसिबल हो सके आप डायरेक्ट सप्लाईज वहां से करो जहां तक आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेट्स सपोज आपकी पेरिशेबल आइटम्स हैं तो आप उनको एक जगह से ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, आपको वहीं पे उनको मेंटेन करना होगा, तो अलग है। लेकिन अगर आप उसको एक जगह पे सेंट्रली स्टोर करके और वहां से आप उसको डिस्पैच कर सकते हो तो वो आप करें जीएसटी के अंदर, आपके लिए ज्यादा टैक्स बेनिफिशियल रहेगा ये। सेकंड कि आप अपनी ब्रांचेस के पास जो स्टॉक मेंटेन करते हो वो स्टॉक भी उसको क्वांटम, अगर मुझे कहीं पे अपना वेयर हाउस या अपनी कोई लेट्स सपोज ब्रांच ओपन करनी है और वहां पे मुझे गुड्स को रखना ही है, तो भी वहां पे मुझे कितनी क्वांटिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि अब तक ये था कि आप बल्क में कितनी भी क्वांटिटी मेंटेन कर सकते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्योंकि आपकी जब स्टेट क्रॉस होगा तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप जितनी मिनिमम क्वांटिटी वहां पे मेंटेन कर सकते हैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतनी क्वांटिटी मेंटेन करें। लेट्स सपोज जैसे सीजनल गुड्स में जो लोग डील करते हैं जनरली वो क्या करते हैं कि अपने एरिया में, जैसे लुधियाना का आपका हैंडीक्राफ्ट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज वो वुलन्स अगर बना रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, पूरे साल उनको बनाते रहेंगे और ट्रांसफर करते रहेंगे अपने खुद के लेट्स सपोज ब्रांच को दूसरे स्टेट में, दिल्ली में। तो अभी उनके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती एज सच। लेकिन जब आप जीएसटी में सेम चीज करोगे तो आपका उन पूरे मंथ्स तक वहां पे जो स्टॉक है उस पे आपकी वर्किंग कैपिटल जो टैक्स में आपने पे की है वो वहां पे ब्लॉक्ड रहेगी। तो आपके लिए जरूरी क्या होगा कि आप उसको मैन्युफैक्चर करके साल भर अगर आपको स्टोर करना है तो उसको आप सेम स्टेट के अंदर करें, और फिर जब उसकी सेल होने वाली है यानी कि उसके ट्रांसफर और उसके सेल के बीच का जो पीरियड है वो जितना कम हो उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपकी फर्स्ट टिप थी कि आपको अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को एक बार रिव्यू करके देखना चाहिए कि इन लाइट ऑफ जीएसटी आपके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या आइडियल है, क्या वो आपके लिए सूटेबल रहेगा फ्यूचर में, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी।
इसके बाद सेकंड टिप, ये जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इम्पैक्ट करने वाली है, और वो सेकंड टिप्स है कि जनरली पहले क्या होता था, सर्विसेज के केस में हमें एडवांस पे भी टैक्स लगता था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के केस में यानी गुड्स के केस में ऐसा नहीं था। लेकिन जीएसटी में क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आपका पेमेंट भी है और वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए है, तो यानी कि जब आप गुड्स के लिए भी एडवांस रिसीव करेंगे, जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता यही है क्योंकि वर्किंग कैपिटल का सबके पास काफी डेफिशिएंसी होती है, तो जब भी कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले एडवांस लेते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप एडवांस रिसीव कर रहे हो उस पर भी आपको टैक्स पे करना है। और लेट सपोज आपको एक ऑर्डर मिलता है 1 करोड़ रुपीस का और उस पर आपको 10 लाख का एडवांस मिलता है, तो आपको 10 लाख के एडवांस पे पेमेंट करना है टैक्स का, लेकिन जो आपका रिसिपिएंट है वो उस एडवांस के टैक्स को यूटिलाइज तब कर पाएगा जब आप पूरे 1 करोड़ का माल उसको डिस्पैच कर दोगे, यानी कि उसको रिसीव हो जाएगा पूरे 1 करोड़ रुपीस का लॉट। तो यहाँ पे आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि आप उस 1 करोड़ के ऑर्डर को पहले 4 या 5 ऑर्डर में या उसको 10 छोटे छोटे ऑर्डर्स में डिवाइड करें, और जो आपका फर्स्ट एडवांस है 10 लाख का उसको आप पहले ऑर्डर के अगेंस्ट शो करें बुक्स के अंदर। देन जब आपका पहला ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा तो आपने उस पर टैक्स तो पे कर ही दिया, लेकिन साथ में आपका रिसिपिएंट उसको यूटिलाइज भी कर पाएगा। फिर जो आपको फर्दर एडवांस रिसीव हो रहा है उसको आप अपने सेकंड ऑर्डर और इसी तरीके से आप इसी सीरियल में उसको एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो दूसरी टिप्स आपके लिए ये है कि अपने ऑर्डर्स को बहुत बड़ा करने के बजाय उसकी क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखें। तो छोटी क्वांटिटी के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आपकी डिलीवरी उन लॉट्स की होती रहेगी वैसे वैसे आपके रिसिपिएंट को आपने जो टैक्स पे किया है उसके ऊपर उस टैक्स का बेनिफिट मिलता रहेगा, उसका आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक तो टाइम लैग भी उससे कम हो जाएगा और उनके जो ब्लॉकेज है आईटीसी की आपके रिसिपिएंट की वो भी कम हो जाएगी। सेम चीज आप पे भी अप्लाई होती है जब आप दूसरों को ऑर्डर कर रहे हो। तो जब आपका रिसिपिएंट आपसे ऑर्डर कर रहा है, लेकिन जब आप भी फर्दर अपने रॉ मटेरियल्स के लिए ऑर्डर कर रहे हो तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज में ऑर्डर करें। तो लेट सपोज आपको 1 करोड़ का ही करना है, आप 1 करोड़ का ही करो साल भर का, लेकिन उसको छोटे छोटे ऑर्डर्स के अंदर ब्रेक कर दो। सो दिस वाज द सेकंड टिप फॉर यू। तो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं उनको जीएसटी में ऐसा करना पड़ेगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप नहीं करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड रहेगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप है कि यहाँ पे आपको जो वेंडर सिलेक्शन का क्राइटेरिया है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक आप जो वेंडर सिलेक्शन करते हैं वो शायद इस बेसिस पे करते हैं कि वो आपको टाइम पे माल पहुंचा देते हैं कि नहीं, या सेकंड चीज ये है कि वो आपको डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी तो अभी भी एक क्राइटेरिया रहेगी डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट करते हुए उसके कंप्लायंस वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जीएसटी आइन इसके लिए आपको क्लाइंट्स की जितने भी उनके टैक्स पेयर्स हैं उनकी एक रेटिंग मेंटेन करेगा और आप वो रेटिंग चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी, क्योंकि रेटिंग आने में ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, लोग डिफॉल्ट करेंगे, रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि कौन कितना कंप्लायंट है। लेकिन उसके पहले से भी आपको क्या करना है, वेंडर सिलेक्शन उन्हीं लोगों का करना है जो लोग अपने कंप्लायंसेस हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये समझना है यहाँ पे कि अगर आपके वेंडर ने रिटर्न नहीं फाइल की तो अल्टीमेटली आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपके प्रोडक्ट पे अगर 18% का टैक्स है तो आपको ये सोचना है कि आपको अगर 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो लॉस है वो 18% प्लस इंटरेस्ट वो हमेशा ही होगा। क्योंकि अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता आप उसको प्रोविजनली क्लेम करोगे, और प्रोविजनली क्लेम करने के बाद लेट्स सपोज वो फाइनली नहीं रिटर्न फाइल करता, आपको डिसअलाउड होगा और फिर आपको विद इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपके बिजनेस के लिए एक बर्डन होगा। इसके बाद हमारी 4th टिप है कि आप अपने वेंडर्स के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट्स में आप ये क्लॉज डाल सकते हैं कि अगर उनके नॉन कंप्लायंस की वजह से आप पे पेमेंट की लायबिलिटी आई, क्योंकि जीएसटी में पेमेंट की लायबिलिटी अल्टीमेटली रिसिपिएंट की है, यानी कि आपके अगर वेंडर ने अपना पेमेंट नहीं किया टैक्स का तो वो लायबिलिटी आपको बियर करनी पड़ेगी, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आप एक क्लॉज डाल सकते हैं कि अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया या उनके पेमेंट या उनके कंप्लायंस नहीं करने की वजह से, रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से आप पे अल्टीमेटली कोई बर्डन आया तो आप उसको उसकी जो पेबल अमाउंट है वहां पे आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट के अमाउंट भी, टैक्स तो आप करेंगे लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट भी आप उसे कंपनसेट कर सके।
साथ ही आप ये भी एक बिजनेस प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने वेंडर को तभी पेमेंट करो जब वो अगले महीने की 10 तारीख तक रिटर्न फाइल कर दे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रिटर्न फाइल करने की डेट मैक्सिमम 10 तारीख है, लेकिन डेटा एंटर करने की डेट 10 तारीख नहीं है। मतलब आपका वेंडर चाहे तो वो डेटा शुरू से ही एंटर कर सकता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन से वो डेटा को एंटर कर सकता है सिस्टम के अंदर, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो वो एक चेक आप लगा के रख सकते हैं ताकि अल्टीमेटली उसके नॉन कंप्लायंस की वजह से आपको अपना लॉस नहीं करना पड़े, अपना लॉस आप कवर कर पाओ उससे। सो दिस वाज आवर 4th टिप। इसके बाद लास्ट 5th बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, किसी भी चेंज को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने का या अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे सही तरीका होता है कि उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है आईटी एनेबलमेंट, यानी कि मैंने जो अपना आईटी सिस्टम्स बनाए हैं, जो मैंने सिस्टम अपने प्लेस किए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दो शुड बी करेक्ट। सेकेंड थिंग, जो लोग उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, जो लोग उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, दोज पीपल शुड बी ट्रेन्ड फॉर इट। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। लेट्स सपोज जीएसटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा कि आपको टैक्स इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है या इंटरस्टेट, ये डिसाइड करना, आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। क्योंकि अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया तो एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, ऑल्दो इंटरेस्ट पे नहीं करना स्पेसिफिकली लॉ प्रोवाइड करता है। सेकेंड थिंग, रिफंड क्लेम करने के लिए आपके पास 2 साल का टाइम है फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, लेकिन डिपार्टमेंट के पास रिकवरी करने के लिए, यानी कि डिमांड रेज करने के लिए, नॉट पेड टैक्स के लिए, शॉर्ट पेड टैक्स के लिए, क्योंकि अगर आप गलत टैक्स पे कर रहे हो तो सही वाला टैक्स विल बी नॉट पेड। ठीक है जी। तो उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 3 साल नॉन फ्रॉड केसेस में, एंड फ्रॉड वाले केसेस में 5 साल है ऑर्डर पास करने की डेट। तो आपको ये चीज समझनी है कि हो सकता है आपकी रिफंड फाइल करने की डेट निकल गई हो, लेकिन डिपार्टमेंट की डिमांड रेज करने की डेट नहीं निकली होगी। तो ये भी हो सकता है कि आपने अगर गलत टैक्स पे किया तो शायद आप उसको फिर रिकवर भी ना कर पाओ और आपको सही वाला टैक्स देना पड़े। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाता है कि जो आपका इनवॉइस बन रहा है वो इनवॉइस बिल्कुल सही बनना चाहिए, उस पर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई और उस पर लोकेशन ऑफ सप्लाई बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि वो 2 चीजें आपने सही पता लगा ली तो आपका टैक्स हमेशा सही डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हो तो यानी कि जब गुड्स डिस्पैच होने हैं, जब गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होना है, उसी वक्त आपको ई-वे बिल बनाना है, उसी वक्त आपको उसका इनवॉइस भी काटना है। तो जो पर्सन वहां डिस्पैच हैंडल कर रहा है, जो वो इनवॉइस बना रहा है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक तो सिस्टम आप उसको एक प्रोवाइड कराएंगे, जिस सिस्टम में आप उसको बताएंगे कि अच्छा गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं तो आप ये इनवॉइस की एंट्री करो। ये सब फील्ड 16 फील्ड्स आर ऑलरेडी देयर इन इनवॉइस। एक अलग वीडियो भी हमने उसके लिए बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें सिर्फ इनवॉइस के सारे फील्ड्स को डिस्कस किया गया है। तो लेट्स सपोज वो मैंने अपने सिस्टम में चेंज कर दिया। अब उन फील्ड्स में से एक फील्ड है लेट्स सपोज प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आपने अगर अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, तो क्या होगा, कई बार हो सकता है कि वो गलत फिल कर दे, और गलत फिल करने के बाद अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो वो हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से करनी है कि अपने सिस्टम में भी इम्प्लीमेंटेशन करना है चेंजेस का, और अपने स्टाफ को उसके लिए ट्रेन भी करना है। तो ये हमारे आज के 5 टिप थे स्पेशली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो होप आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम लोग इसी तरीके से और भी डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आएंगे। और साथ ही अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो हम फिर एक FAQ का सेपरेट वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस के ही आंसर्स होंगे सबके सब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। हमारे चैनल देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जीएसटी के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच।